السلام علیکم خواتین و حضرات، ناول قسط نمبر 13 پیش خدمت ہے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے نیچے لے جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ زبان سے ایک حرف بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ دل ڈھیروں بار ٹوٹا تھا۔ کیسی بے بسی تھی۔ پوری رات جس کی آغوش کی نرمی میں گزاری، وہ دن چڑھتے شفافیت کے عروج پر تھا۔ اگر یہ سب کرنا ہی تھا تو اس کے پاس کیوں آیا تھا؟ کیوں اسے جھوٹا سکون حاصل کیا تھا؟ کیا اس کے لیے یہ سب عام بات تھی؟ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے۔ یہ لیں، یہ رہی گھالیہ اشل سفیر۔ اس نے لیڈی پولیس کے سامنے اس کا ہاتھ چھوڑتے کہا تھا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اشل بھائی ہوش میں تو ہیں؟ مفات نے آگے بڑھ کر گھالی کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیڈی پولیس سے دور کیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کیا ایک قاتلہ کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھرتے صوفے پر بیٹھتے تسلی سے کہا تھا، بیوی ہے وہ آپ کی؟ مفاتیہ چلائی تھی اس پر، جانتا ہوں اگر یہ میری بیوی ہے تو پھر تو تمہیں ہم دونوں کے درمیان نہیں بولنا چاہیے، رائٹ؟ کہتے اس نے اپنے اور گھالیہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کس قدر ڈھیٹ ہیں آپ؟ مفاتیہ کو اس کی ہٹ دھرمی پر غصہ آیا تھا۔ اچھا ویسے مجھے تو میری بیوی بہت سویٹ سمجھتی ہے، کیوں گھالیہ؟ اس نے گھالیہ کی طرف دیکھتے آنکھ وینک کی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اسے یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی، مفاتیہ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ واٹ ایور، یہ میرا نہیں پولیس کا ہیڈیک ہے۔ ٹھیک ہے پھر ہوتی ہے کورٹ میں ملاقات ڈیئر وائف۔ اشل قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا اور کہتے جھک کر گالی کے روئی جیسے نرم گال پر لب رکھے تھے۔ مفاتیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جب کہانی کے چہرے پر پل بھر میں مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ باہر سے آتے آسن نے پوچھا تھا، جس کے ساتھ کالے کوٹ میں موجود واسع انکل بھی تھے۔ سر مس گالیہ کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، ہمیں ان کو گرفتار کرنا ہے۔ یہ ہے ضمانت کے آرڈر، اب آپ انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ لیڈی پولیس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ آسن نے اور ضمانت کے آرڈر اس کے ہاتھ میں دیے تھے۔ لیڈی پولیس انسپکٹر نے آرڈر دیکھے تھے پر اپنے عملے کو اشارہ کرتے وہاں سے جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے آسن، میں چلتا ہوں پھر۔ پولیس کے جانے کے بعد واسع انکل نے کہا تھا، رکیں واسع انکل۔ آسن نے ان کو روکا تھا۔ دور کھڑا اشل غصے سے یہ سب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اشل ان سے ملو، یہ گھالیہ کے آفیشیل لائر ہیں، واسع صداقت۔ آسن نے واسع انکل کی طرف دیکھتے اشل کے سر پر بم پھوڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر واسع انکل اس کے مقابل وکیل ہیں تو یہ کیس بری طرح ہار جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا کیس نہیں تھا جو اب تک واسع انکل نے جیتا نہ ہو۔ آسن بھائی آپ، اشل نے مٹھیاں بھینچتے کچھ بھی سخت کہنے سے منع کیا تھا خود کو۔ ٹھیک ہے انکل، اب آپ جا سکتے ہیں۔ فرسٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، کورٹ میں ملاقات ہوگی اب آپ سے۔ آسن نے کہتے ان سے ہاتھ ملایا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے چال دیے تھے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ مفاتیہ کو گھالیہ کو بٹھانے کا اشارہ کرتے وہ چلتے ہوئے اشل کے پاس گئے تھے۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، میں نے آپ سے یہ بات اسی وقت کلیئر کر لی تھی کہ میں بھابھی کے خلاف کیس کروں گا گھالیہ پر، پھر آپ کس حق سے اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ قاتلہ چٹاک؟ اس کو کچھ بھی کہنے سے پہلے اتنی زور سے تھپڑ اشل کی گال پر پڑا تھا کہ اس نے بے یقینی سے اس گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ خود ہنی، مفاتیہ اور گھالیہ بھی اپنی جگہ پر سہم گئے تھے۔ بھائی، اس کی آواز میں بے یقینی تھی، یہ تھپڑ تمہیں کل پڑھنا چاہیے تھا جب تم نے میرے سامنے یہ بکواس کی تھی۔ یہ تھپڑ تمہیں مجھ سے تب پڑھنا چاہیے تھا جب تم نے پہلی بار انسانیت کو اپنے ہاتھ سے جاننے دیا تھا، جب تم نے اس معصوم بے قصور لڑکے کو اٹھا اٹھا کر پٹکا تھا، اور جب تم نے اپنی ضد، انا اور عقل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے انسانیت کی ساری حدیں پار کی تھیں۔ تم مجھ سے حق کی بات کرو، کس حق میں نے اس کی بیل کروائی؟ تو سنو اشل سفیر، میں نے صرف اور صرف اپنی بیوی کے کیے گئے یقین پر اس لڑکی پر یقین کیا۔ وہ کہتی تھی کہ گھالیہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتی، اور میں نے ہنیہ کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا کیونکہ وہ میری بیوی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اتنا کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر اس کی گواہی اور اس کے سائے تلے بنا ہوتا ہے۔ میں نے گھالیہ کا نکاح اس لیے تم سے کروایا کہ جو یقین، جو بھروسہ تم اس پر نہیں کر پا رہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں جڑ کر تم اس پر کرو گے۔ میں نے اس لیے تم سے اس کا نکاح پڑھوایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر ایک بار اس نکاح کے پیپر پر دستخط کرنے سے پہلے اس پر یقین کر کے اس کیس کے ہر پہلو پر سوچو گے، مگر نہیں رہے تم وہی ضدی، ہٹ درم اور اپنی مرضی کرنے والے۔ آسن نے ایک ایک لفظ گراتے ہوئے شدید غصے میں کہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کبھی نہیں کرو گے۔ نکاح کے بعد گھالیہ تمہاری عزت بن جائے گی اور تم اپنی عزت کو پولیس تھانوں کچہریوں میں کیسے رسوا کرو گے؟ مگر میں گھل تھا، تم میں یہ ہانیہ نہیں تھے جو اپنی لڑائی، اپنا جھگڑا، اپنی انا اپنے بیڈ روم تک رکھتے، یا پھر تم ماما بابا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟
तुम हो अशल सफ़ीर। आखिर लफ्ज़ कहते उसका नाम लेते आसन ने उसके दिल के मकाम पर उंगली रखते उंगली को ठोंका था। तुमने कभी शुरू से न हमारी रवायत के पासदारी की, कभी तुमने बाबा की बात मानी जो मेरी मानोगे। आसन की आंखों में आंसू थे। आसन बाई घालियाँ उठी थी, आसन को रोकने गुस्से से चिल्लाते आसन के माथे की रगें फूल रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था और वो मुंह नीचे किए खड़ा आसन का एक लफ्ज़ सुन रहा था। लेकिन घालिया प्लीज़ तुम चुप रहोगी और आज मैं बोलूँगा, आज उसे बताऊँगा कि उसका बचपना ख़त्म हो गया। क्यों ये एक जिम्मेदार इंसान की तरह नहीं रह सकता। जिद, हट दर्मी और अनार रिश्ते ख़राब करती है और तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। पूरी रात मैं इस खुश फहमी में सो नहीं पाया कि मेरा भाई कभी भी अपनी इज्जत और गैरत को बीड़ियों के सामने पेश नहीं करेगा, मगर मैं गलत था। तुमने सुबह होते मेरी सारी खुश फहमियों के बोझ क्यों गिरा दिया और मैं तुम्हारे पुलिस को किए जाने वाले आर्डर के बाद कोर्ट में हार होने चला गया। मेरे सारे खदशे तुमने दुरुस्त साबित कर दिए। वो बेबस होता उससे पीछे हुआ था। गौर से देखो इस लड़की को। वो घाली का हाथ पकड़ते उसे उसके सामने लाते। क्या ये लड़की तुम्हें कहीं से भी कातला लगती है? जो अपने हक में बोल नहीं सकती वो किसका खून क्या करेगी? वो जो अपनी ज़िंदगी से लड़ नहीं सकती वो किसी को जहर क्या देगी? अगर तुम उसे पुलिस के हवाले भी कर देते तब भी ये चुपचाप चली जाती, क्योंकि ये घालिया है जो हालात से समझौता कर लेती है और तुम अशल सफ़ीर जो दूसरों पर जुल्म करना जानते हो। आसन की आवाज़ भर्रा गई थी। आखिरी लफ्ज़ कहते अशल को लगा था वो शर्मिंदगी में घिर चुका है। क्यों उसने अपने इर्द मौजूद बोध को नहीं तोड़ा? क्यों वो उस लड़की पर यकीन नहीं कर सका? सही तो कह रहा था उसका भाई। सारी रात वो उसके गुस्से शीतों को सहती आंसू बहाती आई है। कहाँ उसमें हिम्मत थी कि उसको खुद से दूर फेंक सके। आज भाई आप पानी पिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरबद ने अंदर आते आसन के कांपते हाथों और जिस्म को देखते कहा था, जबकि अशल उसे पत्थर का मुजस्मा लग रहा था जिसमें कोई हरकत नहीं थी। नहीं चाहिए मुझे पानी। आसन ने पानी का गिलास उठाकर दूर पटका था। साजिद भाई, साजिद भाई। आसन ने घर के साइड मुलाजिम को आवाज़ दी थी। जी सर। वो हाथ मंदते उसके सामने हाजिर हुआ था। साजिद भाई आप मेरा और हनी का सामान पैक करके अरबत के घर भिजवा दीजिएगा और गेस्ट हाउस में मौजूद घालिया और मफाते के बैग्स गाड़ी में रखवा दें। आसन ने मुलाजिम से कहा था। वो जी सर कहता चला गया था। फिर वो चल तो अशल के सामने आते। तुम्हारी जगह हनी होता तुम्हें उसके साथ भी यही करता। तुम्हें भाई से बढ़कर मैंने और हनी ने बेटा समझा था। मुझे तुम पर हाथ उठाने में कोई शर्मिंदगी थी और ना है। बाबा की प्रॉपर्टी ऑफ हिस्सेदार, ये सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम अब इस काबिल हो चुके हो कि ये संभाल लो। मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी बहनें ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें घालिया पर केस करना है शौक से करो, मगर अब घालिया को हल्की सी खराश आई तो याद रहा वही जख्म मैं खुद को दूंगा। उसने उंगली उठाते उसे वार्न करते कहा था। भाई वो इतनी अहम हो गई है आपके लिए कि आप मुझे अकेला छोड़कर जा। हाँ हो गई है वो मेरे लिए, क्योंकि अब वो मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। जब उसका शुअर उसकी इज्जत गैरत को तरजीह नहीं दे रहा तो एक भाई होने के नाते मुझे हर हाल में उसकी हिफाजत करनी है। चलो अरबद, कहते वो अरबद की तरह मुड़ा था। प्लीज़ असन भाई मुझे छोड़कर मत जाए। उसकी आवाज़ रेंधी हुई थी। उसने किसी छोटे बच्चे की तो उसका बाजू पकड़ा था पीछे से। तुम्हारी हर गलती मुआफ़ थी, इल्ज़ाम तराशी भी मुआफ़ थी, मगर अगर बात घर की इज्जत पर आ जाए तो ख़ानदान का कोई भी बड़ा इस गलती को मुआफ़ नहीं करता। आज तुमने मुझे ही नहीं घालिया के सामने रुसवा किया, बल्कि बाबा की तरबियत को भी रुसवा किया। चलो गालिया, मफातिया, हनी। सर नबी मिलाते उसने कहा था और फिर उनको लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। घालिया। अशल के मुँह से उसका नाम निकला था। घालिया के कदम जंजीर हुए थे। अब कौन सा नया फरमान जारी होने वाला था? उसने आंसू भरी आंखों से देखा था अशल की तरफ। अशल में भरी आंखों से देखा था उसकी तरफ। नज़रों से नजरें टकराई थी। एक की आंखों में बेबसी थी, बहुत कुछ हो जानने का डर, और दूसरी की आंखों में हजारों शिकवे थे। डॉक्टर बशीर बदर। चलो घालिया। ये वक्त आन पहुंचा था। आसान ने उसका बाजू पकड़ा था। भाई मैं नहीं जा सकूंगा, रह सकूंगा आपके बगैर। वो बेबसी की इंतहा पर था। अशल सफ़ीर, अगर मुझे ज़िंदा और खुशी देखना चाहते हो तो गालिया से दूर रहना। तुम्हारी एक उंगली भी उसे टच हुई तो उस दिन तुम मुझे खो दोगे। कहते वो रुका नहीं था। बाबा मुझे नहीं जानना, चाचू के साथ रहना। हनी ने पीछे मुड़कर अशल को देखते कहा था। जब वो दूसरे हाथ में उसका हाथ थमे उसे बाहर ले आया था और गाड़ी में बिठाया था। अशल का दिल आसन के हर उठते कदम के साथ रोक रहा था। डुबडुबाती आंखों से उसने अपने सबसे करीबी हस्ती को खुद से दूर जाते देखा था। फिर सब आंखों से ओझल हो गए। उसके कानों में गाड़ी के जाने की आवाज़ आई थी। अशल बाहर की तरफ लपका था, मगर गाड़ी घर से बाहर निकल चुकी थी।
उसने बेयकीनी से चारों तरफ देखा था। पूरा घर खाली था। मुर्दा कदमों के साथ चलते वो सोफे तक आया था और वहीं ढह गया। वो सब कुछ जीत कर भी खाली हाथ रह गया। एक बार फिर उसके सर से बाप का साया छिन गया। एक बार फिर वो भाइयों जैसे बाप की शफकत से महरूम हो गए। क्यों, आखिर क्यों? हर बार दुख, तकलीफें, अकेलापन उसका मुकद्दर बनते हैं। क्यों वो अकेला रह जाता है? क्यों वो लड़ नहीं पाता? अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े वो इतनी वहशतज़दा आवाज़ में चिल्लाया था कि इर्द गिर्द काम करते नौकरों की फौज ने उंगलियां कानों में ठोंसी थी। कितने घंटे वो सोफे पर बैठे अपनी जिद, अपनी हठधर्मी और भाई के जाने पर नुआ कुना रहा था। सर, आपके लिए नाश्ता लगाऊं? कितनी बार साजिद ने पूछा था, मगर वो याकटुक ज़मीन को देखे जा रहा था। उसने साजिद की कोई बात सुनी ही नहीं थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। आसन भाई, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। हम दोनों उसे प्यार से समझा सकते थे। वो जज्बाती मगर दिल का बहुत अच्छा है। थोड़ी देर से उसे बात समझ आती है, मगर वो समझ जाता है। प्लीज़ भाई, मुझे फिक्र हो रही है और इसकी। और फिर उसने गाली को पुकारा भी तो था। हो सकता है वो उसे माफ़ी मांगना चाहता हो। ड्राइंग रूम में वो चारों बैठे थे जब अरबद ने कहा था, हनी बहुत रो रहा था। आसन ने बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था। मेरे ख्याल में अरबद, जिंदगी के हर मोड़ पर जज्बातीपन और हठ धर्मी नहीं चलती। कुछ चीज़ें बड़ी समझ बूझ के साथ करनी पड़ती हैं। वो अब बच्चा नहीं रहा और ज़िंदगी के इस मकाम पर मुझे उससे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मेरे ख्याल से यही उसकी बेहतरी के लिए ठीक रहेगा। आसन ने गहरा सांस लेते कहा था, आप उसके बगैर रह पाएंगे? उसे तनहा छोड़कर कैसे संभालेगा वो सब कुछ, घर, बिजनेस और फिर वो केस? अरबत की आवाज़ में दुख था। बच्चा नहीं है वो आज। अगर मैं भी ना होता तो सब के दरमियान तो। आसम भाई, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। अरबत के दिल को कुछ हुआ था उसकी बात सुनकर। देखो अरबत, अब नहीं तो कब? उसे ये सब संभालना होगा, अपने बड़ेपन का सबूत देना होगा। और अगर मुझे उसकी बेहतरी के लिए उससे दूर भी रहना पड़ा तो मैं ये कर गुजरूंगा। कहते उसने जेब में से मोबाइल निकाला था और नंबर डायल किया था। हाँ साजिद, कैसे हो? अचल क्या कर, वो ठीक तो है? आसन ने बड़ी आंखों से पूछा था। अच्छा सर, तो बस सोफे पर गुम बैठे, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे? मैंने नाश्ते का कई बार पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। आप भी ऐसे ही बैठे? साजिद ने उसे बताया था। सर, वो बात कर रहा था जब भी उसने अशर को सोफे से गिरते देखा। क्या हुआ साजिद, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। साजिद, आसन बेचैनी से फ़ोन सुनता खड़ा था। सर सोफे से गिर गए, बेहोश हो गए। मैं क्या करूं? उसने फ़ोन पर बात करते ही बताया था और अशर का सर अपनी गोद में कर, तुम ऐसा करो, उसके हाथ पांव रेब करो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। आसन ने तड़पते हुए कहा था और फ़ोन काटते जल्दी से डॉक्टर को घर जाने का कहा था। क्या हुआ, अशर ठीक तो है? गाली ने आगे बढ़कर आसन से पूछा था। मैं जाता हूँ। अरबद ने कहते टेबल पर से गाड़ी की कीज उठाई थी। मैं भी चलूँगी, गालिया भी उसके पीछे बड़ी थी। रुक जाओ, कोई भी नहीं जाएगा, हम खुद को कमज़ोर नहीं कर सकते, उसे ये जंग खुद लड़नी है। आसन ने मजबूत लहजे में कहते उनको जाने से रोका था। मगर आसन भाई, वो ठीक नहीं है, उसके पास कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे तो जा। मैंने कहा ना, कोई नहीं जाएगा। आसन का लहजा दो टोक था। घालिया और अरबद वापस अपनी नशिश पर बैठ चुके थे। आसन ने फिर से साजिद को कॉल की थी, जो कि पहली बार पर रिसीव हो गई। कैसी तबीयत है अब आयशल की? आसन ने पूछा। सर, मैंने पानी के बहुत छिंटे मारे हैं, हाथ भी और पाँव भी, मगर उन्हें होश नहीं आ रहा। आप डॉक्टर साहब चेक करें, आप उनसे बात कर लें। सजन ने थोड़ी देर बाद फ़ोन डॉक्टर की तरफ बढ़ाया था। जी आसन सर, जी नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, बस ज़्यादा स्ट्रेस लेने की से बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने मेडिसिन लिख दी, इंजेक्शन भी लगा दिया, कुछ देर तक होश आ जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर ने बात करने के बाद फ़ोन साजिद को दिया था। जी सर, मेरे लिए कोई हुक्म? साजिद ने फ़ोन पर पूछा था। साजिद, तुम हमारे बहुत पुराने मुलाजिम, मैं तुमसे बस बढ़कर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अशल की सारी जिम्मेदारियां तुम पर, मुझे किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश ना मिले। यूसुफ, जो अपनी जान तुम्हारी हथेली पर रख दिए कि तुम उसकी हिफाजत करो, जो कुछ आज हुआ वो दोबारा ना हो। उसने साजिद से कहा था। जी सर, आप फिक्र मत करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा। साजिद ने तसल्ली दी थी। ठीक है, रखता हूँ, फिर बात होगी। अशर को जैसे ही होश है मुझे लाजमी बताना, कहते उसने फ़ोन बंद किया था। अब कैसी तबीयत है उनकी? गालिया ने पूछा था। यहाँ आओ मेरे पास। आशा ने उसे अपने सामने आकर बैठने के लिए कहा था। वो उठकर उसके सामने बैठ गई थी। देखो गालिया, तुम्हें थोड़ा बहादुर बनना होगा। रोना हर मसले का हल नहीं होता। अगर सामने चट्टान हो तो खुद को भी चट्टान बनना पड़ता है। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होते।
खुद को और अपने दिल को मजबूत करो, अशल के मामले में अब तुम्हें सख्त होना पड़ेगा। आसन ने उसके हाथ पकड़ते कहा था उससे। मैं नहीं हो सकती आसन भाई, स्पेशली उनके मामले में। उसने नीचे देखते कहा था। तो क्या उसे हो सकती हो? आसन ने सवाल दागा था। नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तो बस फिर प्रॉमिस करो, जब भी उसके सामने जाओगे एक मजबूत और मैच्योर घालिया बनकर, नहीं रोती धोती नाजुक और मासूम घालिया बनकर। एंड प्रॉमिस में जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम उससे बात नहीं करोगी। आसन ने हाथ आगे करते प्रॉमिस लेना चाहता। आसन भाई, गाली ने नफी में गर्दन हिलाई थी। प्लीज़ गालिया, आसन ने रिक्वेस्ट की थी। गाली ने कांपता हाथ उसके हाथ पर रखा था। दैट्स लाइक माई गर्ल, बी ब्रेव बच्चा, अब जाओ जाकर आराम करो। कहते उसने गालिया के सर पर हाथ रखा था और मुफाते को उसे ले जाने का कहा था। तो तुम कौन सी पोस्ट पर हायर कर रहे मुझे? अपने ऑफिस में। उनके जाने के बाद अरबा से पूछा था आसन ने। आपका अपना ऑफिस है हसन भाई, आप जब चाहें जहाँ चाहें बैठ सकते हैं। अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा था। सॉरी यार, मेरी तुम्हारी दोस्ती भी खतरे में आ गई। सिगरेट के कश लगाते कहा था आसन ने। उसके लिए आपको सॉरी नहीं, कान पकड़ना चाहिए। अरबाज ने आंखें छोटी करते मसरूर गुस्से से कहा था। हो तुम दोनों वैसे एक ही थाली चटे बटे। उन्होंने उसकी कमर पर धमाका जला था। क्या करें भाई भी तो आपके हैं, कहते वो खेल खिलाकर हंसा था। अरबत ज़िंदगी के किसी मुकाम पर उसे अकेला मत छोड़ना चाहिए, चाहे मैं रहूं या ना। प्लीज़ असन भाई, कोई फजूल बात नहीं, मैं खाना लगवा रहा हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाएं। कहते वो रुका नहीं था, चले गया था। आसन ने गहरा सांस लेते सिगरेट की राख इस ट्रे में फेंकी थी। क्या तुमने आसन भाई को कॉल की? उसे होश आ गया था। साजिद खान की ट्रे ली कमरे में आया और ट्रे टेबल पर रखी थी। जब भी आशा ने पूछा था, जी सर कॉल की थी, मगर उन्होंने रिसीव नहीं की। साजिद ने कहते खाना टेबल पर सजाना शुरू किया था। ठीक है, अब तुम उन्हें कॉल नहीं करोगे? आशा ने उठते हुए कहा था, जबकि सर में बुरी तरह ठेस उठी थी। घड़ी की सुइयां शाम के 5 बजा रही थी। जी बेहतर सर, साजिद ने कहा था। मेरे कपड़े निकाल दो, उसने बाथरूम की तरफ बढ़ते कहा था। मगर सर पहले खाना तो खा लें, आपका बीपी पहले ही लो है, सचिन ने कहा था। मेरे लिए बस एक कप काफ़ी ला दो, उसने खाने की तरफ देखते कहा था। मगर सर प्लीज़ आप खाना खा लें, आपका बीपी पहले ही बहुत ज़्यादा लो था, साजिद ने एक बार फिर से कहा था। आपको समझ नहीं रहा, आई जस्ट वांट काफ़ी, नथिंग एल्स। वो इतनी ज़ोर से दौड़ा था कि साजिद का खौफ के मारे हल्का खुश हुआ था। उसके आगे वो कुछ नहीं बोला था। साजिद उसका ड्रेस निकाल कर रख कर चले गया। फिर जब वो नहा कर निकला तो साजिद काफ़ी लिए सामने खड़ा था, साथ सैंडविच भी थे। मना किया था ना मैंने आपको, जस्ट काफ़ी चाहिए मुझे, उसने बालों में बुरुश फेरते कहा था। प्लीज़ सर मना मत करें, ये कौन से इतनी हैवी सैंडविच है, साजिद ने टेबल पर रखते कहा था। हम, वो कहते ही उठा था। साजिद भाई अरबाज को तो कॉल नहीं आई, उसने फ़ोन पर नंबर मिलाते पूछा था। नहीं सर, अरबाज सर की कॉल नहीं, कहते वो कमरे से बाहर निकलने लगा था जब आयशा ने कहा था। साजिद भाई सॉरी, थोड़ा रूडली बात कर गया। एनीवे काफ़ी बहुत अच्छी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। बदले में साजिद भी मुस्कुरा दिया था। वो बार बार अरबत को कॉल, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ठीक है, तुम भी मत करो मेरी कॉल रिसीव, अब देखो मैं करता क्या हूँ, गुस्से से कहते उसने फ़ोन टेबल पर पटका था। फिर कुछ सोचते हुए एक कॉल मिलाई थी। कॉल रिसीव हो चुकी थी। उसने कॉल उठाने को कुछ ज़रूरी हिदायत दी और फिर फ़ोन बंद कर दिया। गालिया अशल सफ़ीर, लबों से उसका नाम अदा हुआ था, माथे पर अनगिनत बाल आए थे। क्या लगता है कि अशल अब मज़ीद क्या करने वाला है गालिया के साथ?